Hello students. In previous classes we have studied about the Kp and Kc. Kp for gases, Kc for solids. But and we have discussed about the Kp is equal to क्या होता है PCC into PDD upon PAA into PBB. For which reaction? AA plus BB gives CC plus DD. इस रिएक्शन के लिए हम लोगों ने केफी डिसाइड किया था PCC into PDD means pressure of the product, pressure of product C, and this is the coefficients, pressure of D and coefficient of D upon pressure of A, reactant A and coefficient of reactant A into pressure of B to the power coefficient of B. Is that? And in this term we have also discussed about the Kc, in which we have dealt about concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A, small a, B, C and D, all these are what is this? These are the coefficient of all these reactant and product into coefficient of B to the power coefficient of D. Concentration of B to the power of, sorry not D, it will be B. तो इतना हम लोग प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. ठीक है, तो Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, चलो आओ देखते हैं. रिलेशन बिटवीन Kp and Kc. Kp and Kc are the equilibrium constant on pressure and on concentration. What is the difference? What is the relation between both? Consider a reaction A, same reaction B gives reversible reaction with C and C plus D with D. This is the product and AA and BB are the reactant here. Okay, now law of chemical equation tells us that law of chemical equation tells us that Kc is equal to concentration of C to the power coefficient of C and into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power its coefficient A into concentration of B to the power its coefficient B. Okay, product upon reactant. Again Kp tells us about the pressure, means P of A to the power A into P of B to the power B upon P of pressure of C to the power C into pressure of sorry something wrong here. Pressure of C to the power C
into pressure of D to the power D upon pressure of A to the power A into pressure of B to the power B. Is that we are going to deal with gaseous reactions. So for gaseous reaction आइडियल गैस के लिए क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV equal to nRT. Is that PV equal to nRT? आइडियल गैस इक्वेशन है. यहां से अगर हम बात करें P इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको N अपॉन V इंटू RT. Is that we can write it? N upon V is molarity and molarity is related to concentration. So on the place of N upon V, we can write here P is equal to concentration into R in RT. Can we write? Can we write here? Now put this value into this here. What we get? P equal to CRT. तो बताओ यहां पर अगर हम बात करें C की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? P अपॉन RT मैं इसे लिख सकता हूं. बताओ लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन RT. ओके, पुट दिस वैल्यू. By putting this value, Kc is equal to concentration of C to the power C. On the place of C we can write P upon RT because these all are the concentration. Okay, so what we have, we can write here PC C upon RT whole to the power C into PD upon RT whole to the power D upon PA upon RT whole to the power A into PB upon RT whole to the power B. Can we write here? Because C is equal to P upon RT. On the place of, due to we are going to consider here concentration, we can write here P upon RT. concentration के लिए मैं लिख सकता हूं P upon RT. ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? PCC इंटू PDD अपॉन PAA इंटू PBB इंटू what we get here 1 upon RT is common in all. We can write here 1 upon RT to the power C into 1 upon RT to the power D upon 1 upon RT to the power A into 1 upon RT to the power B. Can we write? अब देखो अब क्या होता है कि Kc को मैं लिख सकता हूं PCC into PDD. Look here, Kp में लिख सकता हूं PCC into PDD upon PAA into PBB. तो अब यहां पर मैं इसे क्या लिख सकता हूं? On this place we can write here Kp. भाई ये वैल्यू किसकी है? Kp की वैल्यू है. यहां से आप चेक कर सकते हो
जो हम लोगों ने कल पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो ये P की वैल्यू है, तो मैं यहां पर इसे इसकी जगह पर मैं Kp लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां क्या होता है 1/RT, मैं इसे लिख सकता हूं 1/RT का होल टू द पावर, मल्टीप्लाई में क्या होता है बेस सेम, देन व्हाट विल बी इन द मल्टीप्लिकेशन, यस पावर विल बी एडेड हियर C plus D, and here we can write as 1/RT to the power A plus B। अब मैं इसे क्या कर सकता हूं 1/RT को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेस सेम, व्हाट विल बी इन डिवीजन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, देन वी कैन राइट हियर Kc equal to Kp multiplied by 1/RT का होल टू द पावर C plus D माइनस A plus B। मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, क्योंकि A plus B डिवीजन में है, जब ये आएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, बेस सेम होता है, आप लोग बचपन में ही पढ़ चुके हो कि बेस सेम है तो डिवीजन में क्या किया जाता है पावर को माइनस कर दिया जाता है, यहां ये हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट C plus D, टोटल नंबर रिएक्टेंट A plus B, कोफिशिएंट इसका ये जितने मोल्स हैं, ये जितना मोल है, इस प्रोडक्ट के मोल में से अगर रिएक्टेंट के मोल को माइनस किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं चेंज इन मोल्स। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं Kc इज इक्वल टू Kp इंटू what 1/RT whole to the power delta Ng, change in moles। डेल्टा Ng क्या है चेंज इन मोल्स, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इधर ही रेस्ट कर देता हूं, इधर का तो आप लोग जानते ही हो प्रीवियस लेक्चर वाला है, और अगर नहीं तो अभी इतने देर में आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहां क्या हुआ Kc इक्वल टू Kp इंटू 1/RT Ng, Kc इक्वल टू Kp इंटू 1/RT का होल टू द पावर Ng। अब बताओ इसे मैं क्या 1/RT Ng को सॉरी डेल्टा Ng, अब अगर इसे मैं Kc की तरफ ले जाऊं तो मैं इसे लिख सकता हूं Kp इज इक्वल टू Kc RT Ng, RT डेल्टा Ng, ओके। और ये हमें मिल गया एक रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, क्लियर है ना। जहां पर R क्या है R एक क्या है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप यूज करोगे 0. कितना होता है 0.82 लीटर पर एटीएम, सॉरी लीटर पर केल्विन पर मोल, ओके। यहां पर होगा लीटर एटीएम, नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो इधर कर देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.82 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब बात करते हैं अगर T की, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, T क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा Ng इज इक्वल टू चेंज इन मोल्स, और बाकी तो आप रिलेटेड हो
बाकी Kp एंड Kc ये तो आप लोग जानते हो। तो ये सारी बातें हुई हमारी Kp एंड Kc के रिलेशन के बारे में। अभी जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कंसीडर्ड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ डेल्टा एनजी निकालने के बारे में। ओके, कॉपी इट नाउ। I hope you all have copied it, and after that we are going to deal some questions related on this topic. Means how to write the Kp and Kc, how to show the relation between Kp and Kc for a particular reactions. Okay, तो चलो कुछ questions करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है write a relation between Kp and Kc for the following reaction. और हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये है N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। देखो, what we have to do here, write a relation between Kp and Kc। Kp और Kc में रिलेशन बताना है फॉर दिस रिएक्शन। बस इसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग थोड़ा कम ही लगाया करें। जो बताया जा रहा है उस पर आप फोकस करो। What we have to find here, first of all we have to find the change in moles। अगर चेंज इन मोल्स हमें पता चल गया तो मैं रिलेशन इसमें Kp और Kc में इस रिएक्शन के लिए रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं पहला काम क्या करूंगा, चेंज इन मोल्स निकालूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। चेंज इन मोल्स मीन्स डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या होगा, number of moles in product side। how many number of moles product side, number of moles in product side। चलो लिख देते हैं number of, total number of, not number लिखो, यहां पर हम लिखे total number of moles in product side of what, gaseous सिस्टम या गैसियस मॉलिक्यूल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन नहीं ऑफ लिखो, ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। इसे आप लोग लिख लेना, क्योंकि मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार आप लोग लिख लो, इसे माइंड में सेटअप कर लो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। देखो इसमें करना क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट साइड, ये सब रटने की चीजें नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, चेंज इन मोल्स। चेंज इन मोल्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो, प्रोडक्ट का टोटल मोल्स माइनस रिएक्टेंट का टोटल मोल्स, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज इन मोल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2NH3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट साइड 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, माइनस कहता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल H2V गैस, N2V गैस। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर देयर 1 प्लस 3, ये कितना है 1, ये कितना है 3। इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स शो करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप इसे याद कर लो।
The coefficient given with the molecules indicates the number of moles for the product and this is for the reactant. क्लियर है? चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2 - 4 इज इक्वल टू -2। बताओ हमारे पास डेल्टा एन जी कितना आया? डेल्टा एन जी आ गया -2। अब देखो जब हमें चेंज इन मोल्स पता चल गया तो मैं इसका रिलेशन भी बता सकता हूं। व्हाट विल बी रिलेशन हियर? Kp इक्वल टू क्या होता है? KcRTNg। इज दैट Kp इक्वल टू KcRT डेल्टा Ng। डेल्टा Ng हमें पता है तो मैं इसे लिख सकता हूं Kp इज इक्वल टू Kc व्हाट RT होल टू द पावर -2। -2 अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू 1/RT²। RT का होल स्क्वायर मैं ये लिख सकता हूं। अब अगर मैं ये लिख सकता हूं तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं। क्या? Kp इज इक्वल टू Kc/RT मैं लिख सकता हूं। बोलो मैं लिख सकता हूं। तो एक तो रिलेशन हमारा ये आएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये RT का होल स्क्वायर आएगा ना कि सिर्फ इतना आएगा। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया? Kp इज इक्वल टू Kc/RT²। इज दैट? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आफ्टर दैट कॉपी करो इसे, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफर होगा। ये तो सिंपल है, ऑल दीज आर इन गैसियस स्टेट, so we have considered all these. Some reactions are there in which solid state is given, in which liquid state is given. Then what will we do? Copy it and we will consider about that type of reaction. Do it now. Okay? चलो अपना सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, main question is there, write a relation between Kp and Kc for the following reaction, and the second reaction is what? CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas। अब देखो इसमें करना क्या है? दिस इज इन सॉलिड स्टेट, वी हैव नॉट टू कंसीडर इट। जो सॉलिड स्टेट में होगा उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये क्या है? सॉलिड स्टेट, इसे भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, इसे मैं कंसीडर करूंगा। अब बताओ अगर हमें निकालना हो चेंज इन मोल्स, तो चेंज इन मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? डेल्टा Ng means change in moles। डेल्टा Ng is change in moles। चेंज इन मोल्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर 1 है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट 1, एंड इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है। माइनस रिएक्टेंट, दिस इज 0 हियर, 0। व्हाट वी गेट? डेल्टा Ng इज इक्वल टू सॉरी नॉट 0, डेल्टा Ng इक्वल टू 1। अब मैं अगर रिलेशन लिखना चाहूं तो Kp इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? Kc/RT का होल डेल्टा Ng होता है चेंज इन मोल्स। मैं इसे लिखना चाहूं तो रिलेशन बनेगा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर 1। ये हुआ हमारा सेकेंड टाइप का रिएक्शन। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। और आप समझोगे कि इसका इंपॉर्टेंस है ही क्या सर, ये तो बहुत इजी है। हाँ बेटा इजी है, इसीलिए आपको जानना है, क्योंकि जो चीजें जितनी इजी होती हैं दिखती हैं वो एक्चुअल में वैसी होती नहीं है। थोड़ा सा तो डिफर होगा ही, या हम इसका बार बार यूज करेंगे, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। चलो अब देखते हैं एक और हमारे पास रिएक्शन है जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है, और वो रिएक्शन है क्या?
हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस gives 2HI in which state? Gaseous state. अब देखो, all these are in gaseous state, so we considered all these for change in molecules. तो not change in molecules, change in moles. डेल्टा Ng is equal to, मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन, क्योंकि बाकी सब लोग कहने लगते हैं सर ये गिवन है कि सॉल्यूशन है, तो उसे आप लोग लिखते चलो। डेल्टा Ng को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड, हाउ मच इज गिवन 2, माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड, हियर H2 क्या है इसका कोफिशिएंट 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस I2 का 1, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स डेल्टा Ng कितना आ गया 0। हाउ कैन वी रिलेट द Kp एंड Kc? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT Ng, is that? So we can write here Kc into RT, डेल्टा Ng is 0 होल टू द पावर 0। अब आप लोग पढ़े हो, जानते हो, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो कि अगर किसी भी क्या बोलते हैं वेरिएबल्स के का पावर अगर 0 होता है, किसी भी वेरिएबल्स हो, डिजिट हो, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 होता है, it means it will be 1। So we can write here Kp is equal to Kc into 1. It indicates that Kp is equal to Kc, means in this case Kp और Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर? आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर। वी विल डिस्कस about some questions and some important terms in next video. Okay, thank you.